Get online. Ma'am, now can I give? बेटा नेक्स्ट इशू लिखिए, नेक्स्ट इशू लिखिए। Ma'am, now can I give? So, hello to everyone. Today, I am not Coach Frozen. Today, I am Proteins. And I think you know me very well. I'm essential for kids as I am a body building food. Which means that बेटा इशू लिखिए नेक्स्ट। I am very important for your इशू muscles लिखिए। and muscle डिस्कस। So, when people डिस्कस walk in the evidentiary value. So, Discuss the the evidentiary value now you have to know where I am. of And expert for this, opinion. there's a test for me to find me that I'm in a food or not. So, for that, you have to With take a special small reference to- quantity of the food item, with special grilled, reference to mashed, paste, powdered food decided item. cases, Put the decided cases food item in the by the test tube. Supreme Court. Add 10 drops of water and shake the test tube. Using a dropper and use 2 drops of copper Next question, or sulfate the solution or to the test tube. the value of Then, if the color becomes the some value of an purple expert blackish green, so it means that I am opinion in the food. So this was the test for in the eyes of law, and there are many proteins in food, but mainly the there value of The- expert opinion non-veg in the eyes of law like meat, can be goat, assimilated chicken goody, and many things like that. But many of you don't eat that, and your children also. As can be many assimilated of the people say that this is again on from the their basis of religion. So, but I'm very Can be assimilated assimilation assimilated of me on the can basis of cause you disease. मैम शिफाली को एंटर कर लो, वो वेटिंग रूम में है। किया हुआ है बेटा, उसको मैं बुक कर नहीं पा रही हूँ। Characterized by energy ओके मैम। The value of expert opinion in the eyes of law can be assimilated on the basis of less than 62% various of the principles. normal accepted body weight for the age. Discuss Quadruped food is a form Discuss of severe protein malnutrition those characterized principles. by edema Discuss and those and- principles enlarged or enlarged livers or with fatty or infiltrates. It is Deportation caused by sufficient calorie intake expert opinion but with Expert insufficient opinion protein consumption. is one such piece of Which evidence. distinguishes it Expert from opinion Quashiorkor is one such piece of evidence in areas of famine or which poor is- food people which or is poor food supply. Thank you. not logically relevant, which is not logically relevant
What? What has been declared Ma'am, which is not logically relevant but has been declared to be legally relevant. मैम ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो. Expert opinion is one such fact which is not logically relevant but has been declared legally relevant. Discuss the approach of court. Discuss the approach of court towards the expert opinion in light of this statement. In light of this statement. In light of this statement. बेटा केस है दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल. आप इसकी साइटेशन लिख लीजिए. AIR 2012 SC 3046. बेटा इसके अंडर ना पहला इशू लिख लीजिए. एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन. एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन स्लैश डाल दीजिए. प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सपर्ट ओपिनियन. प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सपर्ट ओपिनियन स्लैश डाल दीजिए. या वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन या वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट लिख लीजिए. वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ. वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ. तो ये तीन चीजें इसमें कवर होगा. एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सपर्ट ओपिनियन, वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ. वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ. बेटा मैं आपको ना जजमेंट का, ये तो चलो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैं आपको जजमेंट का रेलेवेंट पोर्शन भेज रही हूँ. उसमें नंबरिंग हुई हुई है, तो आप सिर्फ हेडिंग्स लिख लेना, कंप्लीट आप बाद में कर लेना. बेटा आपको मैंने इमेज सेंड की है, उसमें आपको 1 2 3 4 मिलेगा. बेटा आपने डॉक्यूमेंट खोल लिया? बेटा व्हाट्सएप पे देखो अब डॉक्यूमेंट. आप ना रजिस्टर पे सिर्फ हेडिंग्स पेन डाउन कर लो. ये 1 2 3 5 6 उसके अंदर लिख देना. हर एक पॉइंट के बाद ना 5-6 लाइनें छोड़ देना फिल करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए जो हमने बोला है ना, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन या प्रिंसिपल्स गवर्निंग एक्सपर्ट ओपिनियन या वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ. इसके पॉइंट्स लिख लीजिए. फर्स्ट लिखिए, रिजल्ट शुड बी directly demonstrable. Result should be directly demonstrable. सौरभ रीड कर बेटा, ये वाला रीड कर. फर्स्ट पॉइंट जो मैंने भेजा है,
वो डॉक्यूमेंट में से रीड कर लो। बेटा यही आपका फर्स्ट पॉइंट है। The essential principle governing The essential principle governing the expert evidence is that the expert is not only to provide reason to support his opinion, but a result should be directly demonstrable. इसके बाद सेकंड लिखिए, सेकंड हेडिंग लिखिए, court has to assess his evidence. Court has to assess his evidence. Court has to assess his evidence. रीड कर बेटा। कोई भी रीड कर दो बेटा। The court is not to surrender its own judgment to that of the expert or delegate its authority to the third party, but should assess his evidence like any other evidence. बिल्कुल ठीक है। थर्ड हेडिंग लिखिए, inadequate or cryptic report. Inadequate or cryptic report. रीड कर दे बेटा। मैम यस सौरभ। सेकंड पॉइंट क्या था? मेरा नेट कनेक्शन बंद हो गया था, सॉरी। बेटा सेकंड की हेडिंग है, कोर्ट हैज टू असेस हिज एविडेंस। कोर्ट हैज टू असेस हिज एविडेंस। थर्ड हेडिंग है, inadequate or cryptic report. Inadequate or cryptic report. बेटा रीड करना थर्ड। If the report of an expert is slipshod, inadequate or cryptic, and the information of similarities or dissimilarities is not available in his report, and his evidence in the case यस आगे देन then मैम मेरी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं मैं शो कर रही हूँ बेटा ना। देन हिज ओपिनियन then his opinion is of no use. Then his opinion is of no use. उसके बाद फोर्थ हेडिंग लिख लीजिए। फोर्थ हेडिंग लिख लीजिए, material on which he based his opinion. Material on which he based his opinion must be produced in court. Must be produced in court. बेटा रीड करिए, ये फोर्थ पॉइंट है, रीड करना। रीड करना बेटा फोर्थ। It is required an expert, whether a government expert or private, if he expects his opinion to be accepted, to put before the court the material which induces him to come to his conclusion, so that the court, though not an expert, may form its own judgment on that material. If the expert in his evidence as a witness does not place the whole lot of similarities or dissimilarities, etc., which influences his mind to lead him to a particular conclusion, which he states in the court, then he fails in his duty to take the court into confidence. यस उसके बाद फिफ्थ लिखिए, ability of witness
to point out ability of witness to point out important facts. Ability of witness to point out important facts. रीड कर बेटा, ये 5th पॉइंट रीड कर. The court is not to believe the ipse dixit of an expert. Indeed, the value of the expert evidence consists mainly on the ability of the witness, by reason of his special training and experience, to point out the court such important fact as it otherwise might fail to observe, and in so doing, the court is enabled to exercise its own view or judgment respecting the cogency of the reasons and the consequent value of the conclusions formed. बेटा 6th हेडिंग लिखो, रीजनड ओपिनियन. लास्ट इसका पॉइंट है रीजनड ओपिनियन. रीजनड ओपिनियन रीड करो बेटा. The opinion is required to be presented in a convenient manner, and the reasons for the conclusion, based on certain visible evidence, properly placed before the court. In other words, the value of expert evidence depends largely on the cogency of the reasons on which it is based. तो ये आपने बेटा 6 पॉइंट्स हैं, हेडिंग के साथ आपने इसके अंदर देना है ताकि आंसर में क्लैरिटी हो. और कोई भी अगर आप इसमें कोई भी इश्यू आया जो इश्यू से रिलेटेड है वही बात उसमें डिस्कस हो. नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अप्रोच ऑफ कोर्ट. अप्रोच ऑफ कोर्ट टुवर्ड्स. मैम ये नेक्स्ट इशू 7th Yes. हेडिंग है मैम. ये अरे हेडिंग 7th नहीं, हेडिंग है ये. इशू है. इशू इसी जजमेंट में दूसरा इशू है. हमने कहा ठीक था है मैम, ठीक है. हाँ, दयाल सिंह के केस में 2 है. हमने कहा था पहले में 3 चीजें हमने की हैं जो ओवरलैप करती है. प्रिंसिपल्स गवर्निंग जो है ये आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, उसमें कोर्ट वाला पार्ट भी आएगा. वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट इन द आईज ऑफ लॉ, इसमें भी दोनों आएंगे. अगर आपको एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, उसमें भी दोनों आएंगे. तो आपका नेक्स्ट इशू लिखिए, ड्यूटी ऑफ कोर्ट. ड्यूटी ऑफ कोर्ट, duty of court while appreciating expert opinion. बेटा इसमें ना थोड़ा सा मिसिंग है. एक फर्स्ट पॉइंट में ना आप लिख लीजिए, फर्स्ट लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए फर्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट. एक्सपर्ट ओपिनियन नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट. इसके अंदर आप लिख लीजिए, द पर्पस ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन. The purpose of an expert opinion is prima facie Can you repeat expert Yes. opinion not binding on court. Expert opinion not binding on court, ये तो हेडिंग है बेटा. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो लिखना है वो लिखिए, द पर्पस ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन is primarily to assist the court in arriving at a final decision. Such report
is not binding. Such report is not binding upon the court. Such report is not binding upon the court. Second heading लिखिए. Court is expected. Court is expected to analyze the report. Court is expected to analyze the report. Court is expected to analyze the report. बेटा रीड करना एक बार. The court is expected to analyze the report, read it in conjunction with the other evidence on record, and then form its final opinion as to whether such report is worthy of reliance or not. Yes. थर्ड पॉइंट का हेडिंग लिख लीजिए. थर्ड पॉइंट का हेडिंग लिख लीजिए. ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, trustworthy eyewitness and prosecution evidence. रीड कर बेटा थर्ड पॉइंट. The assistant in value of expert opinion is indisputable, but there can be reports which are ex facie incorrect or deliberately so distorted as to render the entire prosecution case unbelievable. But if such witnesses and other prosecution evidence are trustworthy, have credence, and are consistent with the eye version given by the eyewitnesses, the court will be well within its jurisdiction to discard the expert opinion. Yes. फोर्थ हेडिंग लिखिए बेटा. फोर्थ हेडिंग लिखिए. फैक्टर्स, फैक्टर्स to be kept in mind. Factors to be kept in mind by the court while appreciating expert opinion. Factors to be kept in mind by the court while appreciating expert opinion. ये फोर्थ पॉइंट है बेटा. रीड कर, रीड करना. An expert duly proved has its evidentiary value, but such appreciation has to be within the limitations prescribed and with careful examination of proof. A complete contradiction or inconsistency between the medical evidence and the ocular evidence on the one hand and the statement of the prosecution witnesses between themselves on the other may result in seriously denting the case of the prosecution in its entirety, but not otherwise. ये बेटा आपका आंसर है. अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. अगर आपको आता है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, आपको वो पॉइंट्स देकर कंक्लूजन में आपको एक कोर्ट वाला भी देना पड़ेगा बिकॉज एविडेंशियरी वैल्यू की बात कर रहे हैं. या वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट ओपिनियन, उसमें भी आपको टोटलिटी में देना है. अब वो देखना है कि आपने कहाँ से कितना डाटा उठाना है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. कल आप प्लीज क्वेश्चन देख कर आना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें हमने चीज डील करनी है. बेटा एक इश्यू इसमें कवर नहीं है, वो आप लिख लीजिए. नेक्स्ट जजमेंट लिख लीजिए. दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब.
AIR 2013 SC page 840 page 840 बेटा पहला मैंने आपको दयाल सिंह ही लिखवाया है ना, एक बार चेक करना। दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल है ना? यस मैम। यस ठीक है बेटा। दरबारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2013 SC पेज 840। आप इसमें लिख लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए प्रिंसिपल्स हेडिंग है मैम ये इशू इशू का ही है बेटा। इस दरबारा सिंह में जो इशू कवर किया हुआ है वो हम उसकी बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड by the court in case of conflict, in case of conflict between medical evidence and ocular evidence, medical evidence and ocular evidence, medical evidence and ocular evidence। बेटा रीड करना, मैंने अभी आपको ग्रुप में जजमेंट थोड़ा सा ये धूमिल है पर फिर भी रीड कर सकते हैं, आप इसको पेन डाउन कर लेना। बेटा रीड करना इसका। so far as the question of inconsistency, रीड कर बेटा इसको। So far as the question of inconsistency between medical evidence and ocular evidence is concerned, the law is well settled that unless the oral evidence available is totally irreconcilable with yes, with the medical evidence, the oral evidence would have primacy. In the event of contradiction between medical and ocular evidence, the ocular testimony of a witness will have a greater evidentiary value vis-a-vis medical evidence. And when medical evidence makes the oral testimony improbable, the same becomes a relevant factor in the process of evaluation of such evidence. It is only when the contradiction between the two is so extreme that the medical evidence completely rules out all possibilities of the ocular evidence being true at all, that ocular evidence is liable to be disbelieved, liable to be disbelieved. is liable to be disbelieved। बेटा इसमें ना अभी मैं आपको जजमेंट सेंड कर रही हूँ क्योंकि ये जजमेंट तो दरबारा सिंह की है पर ये प्रिंसिपल जिन केसेस में हेल्ड हुआ है वो आपको ये देख लेना, बिकॉज कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है विद रेफरेंस टू केस लॉ। तो जिन केसेस में हेल्ड हुआ है वो आप इसमें देख लो। बेटा ग्रुप में देखो, ग्रुप में देखो, ये है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिभजन सिंह अलायंस हरभजन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये दोनों जजमेंट्स में इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है जिनको रेट किया है सुप्रीम कोर्ट में दरबारा सिंह के केस में। ठीक है बेटा, अब कोई डाउट है तो पूछो। ये हमने सिर्फ मैम इसके अंदर सिर्फ यस बोल बेटा।
मैम जो आपने लास्ट वाला भेजा इमेज, उसके अंदर सिर्फ जजमेंट का नाम इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा, जो आपने क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा वो लेफ्ट साइड है, वो खत्म हो जाती थी लेफ्ट साइड, वहां पे राइट साइड पे उन जजमेंट्स का नाम है जिनमें वो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हुए हैं। जजमेंट वैसे कॉन्टिन्यूटी में है, तो लेफ्ट पोर्शन में वो है जो प्रिंसिपल्स थे, फिर जो राइट कॉलम में जो ऊपर वो थे तो वो उसमें कवर नहीं हुआ, तो ये एक ही पेज का लेफ्ट और राइट कॉलम है, वो बॉटम था, ये राइट का कॉलम का अपर है। ओके मैम। एक मिनट रुको, मैं आपको पेज का इमेज सेंड कर देती हूँ क्या। बेटा अब देखो, अब मैंने आपको फुल पेज का इमेज भेजा, जो जजमेंट है ये जो आपने पढ़ा वो पहले लेफ्ट साइड पे था, जजमेंट फिर ऊपर थी, तो मैंने फिर ऊपर का भेजा आपको, इन केसेस में इन प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया। ठीक है प्लीज। यस मैम। शेफाली अब क्लियर है आपको? हाँ जी मैम। ओके बेटा, ये हमारा टॉपिक था एक्सपर्ट ओपिनियन का। अब उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम स्पेसिफिकली हैंडराइटिंग की बात करेंगे। हम स्पेसिफिकली हैंडराइटिंग की बात करेंगे, क्योंकि जो हैंडराइटिंग है वो आपके 45 में भी मेंशन है, 47 में भी मेंशन है, फिर 73 में भी मेंशन है। तो कौन से डिफरेंट मोड्स हैं हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और किस सेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हम अपना कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बेटा आज वाला लेक्चर आपके लिए पेन डाउन करना बहुत मैंडेटरी है, अदरवाइज इसका सिमेट्री नहीं आएगा। तो आज का पूरा लेक्चर पेन डाउन कर लेना, और कल हमारा लास्ट डे होगा ऑन एक्सपर्ट ओपिनियन। कल हमारा टॉपिक सारा वाइंड अप हो जाएगा, बिकॉज टाइम टेकिंग सिर्फ यहीं तक था। कल हम एक उसका हैंडराइटिंग का डिस्कस कर फिर हम 46 से लेके 51 को रेफर करेंगे, और फिर हमारा रेलेवेंसी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा करेक्टर, क्योंकि बाकी सारे हो चुके होंगे, या फिर 34 से 38, 34, 38, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और फिर हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है प्लीज। हेलो मैम, जो आपने फोटो भेजी है ये इसका इशू एक ही इशू है इसका, ये दिलबारा सिंह वाले केस का? बेटा वो एक ही था बेटा, इसमें अगर मेडिकल और ऑकुलर में कंफ्लिक्ट है तो क्या पोजीशन प्रिवेल करेगी, इसी इशू को डील किया हुआ है। तो वो उसके साथ ना जहाँ पैराग्राफ खत्म होता है उसके साथ उन्होंने जजमेंट्स भी कोट की हुई थी कि किन जजमेंट्स में इन प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया हुआ है, क्योंकि कई बार आपको अब क्वेश्चन आ जाते हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू केस लॉज। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपको केस लॉज को रेफर करना पड़ेगा, तो आप केस लॉज देख लेना। ठीक है प्लीज। ठीक है बेटा। ओके मैम। यस यस, तो आप उसमें उसको रेफर कर लेना, और इसके साथ आपका वो खत्म हो जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन। जब हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा 45 से 51 का मेनली, क्योंकि इसमें 45 ही इम्पोर्टेंट है, और एक इसमें इशू जो रहता है जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज पर्टेनिंग टू हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। यहाँ से फिर हम कल अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है प्लीज। ठीक है बेटा, लेक्चर पेन डाउन जरूर कर लेना, उसके बिना बात नहीं बनेगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। और अपने टेनियर में आप क्वेश्चंस देख लो, वो जो जो इस टॉपिक पर आए हैं उसको भी फिर हम कल डिस्कस कर सकते हैं, मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, बट मैम इट इज फ्रॉम सीआरपीसी। बोलो। मैम एक जजमेंट है वीनू भाई हरि भाई मालविया। मैम ये लैंडमार्क जजमेंट है मैम, अभी रिसेंटली आई है। मैम आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस जजमेंट। नहीं 19 में या 20 में? मैम आई गेस 19 या 20 की ही कोई जजमेंट है। क्योंकि मैम बेटा इट 20 इज के तो रिलेटेड मैंने टू इन्वेस्टिगेशन। एक उसमें, क्योंकि जब मैं देख रही थी रिपोर्टर लास्ट वीक, तो एंटीसिपेटरी बेल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। शेफाली आप ना मुझे ग्रुप में ही सेंड कर दो नाम। मैं क्योंकि एससीसी में ना क्या चल रहा है, इनका बीच में गैप पड़ गया था प्रिंटिंग में,
तो वो ना इकट्ठे अब इन्होंने काम चलाने के लिए एक ही में तीन तीन इशू के इकट्ठे ही भेज रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ जजमेंट ना खत्म हो गई है SCC की 2-3 इश्यूज के लिए। जजमेंट्स वैसी ही नहीं आ रही हैं जो मतलब प्रोनाउंस हो रही हैं ऑन डे टू डे बेसिस। आप ना मुझे ग्रुप में सेंड करो, फिर मैं उसको आपको ऑनलाइन चेक कर कर बताऊंगी कि उसकी क्या रेलेवेंसी है, ये किस एरिया के अंदर, क्योंकि मैंने अभी उसको देखा नहीं है वो, क्योंकि अभी 2-3 मेरी रहती हैं बुक्स देखने के लिए, तो क्या पता उसमें हो। तो आप एक बार मुझे सेंड कर दो, आप एक बार मुझे सेंड कर दे बेटा ग्रुप में, जजमेंट का नाम चाहिए सिर्फ मुझे, क्योंकि मैंने वीकेंड पे फिर जजमेंट्स को देखना है 2020 की और 19 की, तो क्या पता उसमें फिर ये कवर हो जाए। ठीक है प्लीज। ओके मैम, मैं अभी भेज देती एक हूँ बार नाम। मुझे ग्रुप में सिर्फ नाम सेंड कर दो, फिर हम इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी मैम। ठीक है बेटा। हाँ जी मैम। और कोई डाउट है बेटा? अपने आप मैम एक जो यस, जो उससे पहले अपने आप ना 10 ईयर में आपने क्वेश्चंस देखने एक्सपर्ट ओपिनियन के बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो ताकि हम कल उसको डिस्कस करें जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई फायदा नहीं होगा कि आप आ रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ सेंड कर रही हूँ इमेज, उसके बाद क्योंकि मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो अब आपके ऊपर है कि आपने उसको पेन डाउन करना है। और जो क्वेश्चंस आए हैं ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस एट होम, आपका हर क्वेश्चन अब कवर होगा। शिवाली डाउट पूछ बेटा। मैम डाउट नहीं था एक्चुअली मैम, सक्सेशन वाली जो जजमेंट आपने करवाई थी ना मैम, वो भी आ चुका है, तो मैम उसका एनालिसिस अभी कराओगे या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट के साथ? बेटा जब हम फैमिली लॉ करेंगे ना उसके साथ ही फिर करेंगे अब तो। पर अगर आप फैमिली लॉ कर चुके हो तो एक बार हम एविडेंस एक्ट के खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर फैमिली लॉ की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करेंगे, तो उसके अंडर हम उसको कवर कर लेंगे। ओके मैम, क्योंकि ठीक है। 20 में सिर्फ सक्सेशन ही नहीं, आपका एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस और गार्डियनशिप पे भी जजमेंट्स आई हुई है, तो वो एक बार आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसमें पहले हम सक्सेशन करेंगे, बिकॉज सक्सेशन का जो जजमेंट आया है वो वहां से स्टार्ट है जहां हमने सेक्शन 6 को छोड़ा था। हमने सेक्शन 6 को ना कंट्रोवर्सी के साथ ही छोड़ा था कि प्रकाश वर्सेस कुलावती में ये हो गया है और दनम्मा वर्सेस अमर में ये हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, तो हमने वो क्वेश्चंस पे छोड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने उन क्वेश्चंस के साथ ही आगे अब बढ़ा है। तो फिर वो हम उसमें जब सक्सेशन स्टार्ट करेंगे तो वो हम उसमें फिर साथ के साथ डिस्कस करना मैंडेटरी हो जाता है। रेदर अगर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उससे इम्पोर्टेंट जजमेंट अब कोई और है नहीं जो आने का दम रखती है पेपर में, पर वो भी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूछता है या नहीं, पर हमें तो वो डिटेल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 6 का सारा उन्होंने एनालिसिस चेंज कर दिया है, क्या इंटरप्रिटेशन था क्या नहीं था, तो फिर वो हम डिटेल में करेंगे। एक बार बेटा हमारा एविडेंस एक्ट बाइंड अप हो जाए उसके बाद हम फिर जजमेंट्स का अलग से उसको डील करेंगे। ठीक है शिफाली? यस मैम। यस। कुछ और पूछने बेटा आपने? कल कल आप बेटा आप सब लोग एक्सपर्ट ओपिनियन के 10 ईयर के क्वेश्चंस देकर लाना, बिकॉज कल आपका एक्सपर्ट ओपिनियन का लास्ट लेक्चर है, ताकि हम लेक्चर के साथ उन सारे एरियाज को भी डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा? ठीक है, थैंक यू यस प्लीज। मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू।